Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Shazed Ahmad and today I'll take 4th class with BS 5th in the course of 14th to 18th century poetry. In previous in previous lectures, we have discussed about the poetry of Chaucer. Now, from today, we will start the poetry of John Donne and we will swiftly move through his different poems and we will explain these poems. But first of all, I would like to tell you people about John Donne, his life, and how he became a poet. And after that, we will also discuss some portion of society at that very time when John Donne was writing poetry. And we will discuss his poem in two bits. First, we will discuss about his songs and sonnet, which is his secular poetry, and after that we will move to the John Donne's divine poetry. So first of all, John Donne, born sometime between 24 and 19 January 1572. So first of all, 1572, it is 16th century and it is Elizabethan era. So here the Queen of England was Elizabeth. So this period is also called Elizabethan period. Okay, and he died in 1631, which was the end of Jacobean and the start of Caroline age, leading English poet of the metaphysical school and dean of St. Paul Cathedral, London. So here we will discuss in upcoming slides that what is metaphysical poetry. So you have to keep one thing in your minds, that John Donne was father of metaphysical poetry. So he was the leading figure of metaphysical poetry. So if I tell you for now that metaphysical poetry is a form of poetry which was beyond the limitation of conventional era which was followed, or conventional style of poetry which was followed in Elizabethan era. So we will discuss in detail that what is metaphysical poetry in upcoming slides or in lectures. Donne is often considered the greatest love poet in the English language. So we will also discuss this thing in upcoming slides, that why Donne is considered the most prolific or the most important love poet in English language. He is also noted for his religious verse and treatises and for his sermons, which rank among the best of 17th century. So if we look at his age, that he was born in Elizabethan age, and at the end of his life it was the end of Jacobean age and the start of Caroline age. So he is considered poet of 17th century because he started his writing in 17 at the start of 17th century. So the first thing is that we have discussed that he has wrote love poetry. So the important thing about John Donne, which we will discuss, that his poetry was divided into two different classes. There were secular poem which do not have any interferences of religion, and there were also some poems which were related to love songs and sonnets. So his writings were divided into two major groups. So we will leave John Donne here and we will discuss about John Donne in some upcoming classes or in lectures. So now we will move towards the society, which is very important factor in any writer's writings. So first of all, we will discuss two important things which are very important. The first word is Catholic and the second one is Protestant. So at that very time, at the time of John Donne, as we have different sects in Islam, like there are some Sunnis and there are Shias, there are Brelvis. So Christianity had also different sects. So the first Christian, they were Catholic Christians, as you have already know, we have discussed it in class. So the Catholic Church was leading Roman and also different parts of England. So it was the major, it had the major contribution in the revival or in the upgradation of religion. उसके बाद जो है कुछ ऐसे हो जाता है कि and at that very time England was Protestant because of Queen Elizabeth. She was Protestant, and after that a new era started.
after the Catholic, a new era started, which is called Protestant. Now, first of all, we will discuss the history of Protestant, and then we will move that whether John Donne was Catholic and Protestant and what he faced because of his religion. So, we'll move to our next slide. First of all, the difference between Catholic and Protestant Christianity church. So, we have discussed that it is the first form of Christianity, and after that we had Protestant, and it is still active in some part of England and as well as in different countries. So the story starts when there was a guy whose name was Martin Luther. He is not American president Martin Luther. It is a time 1517. यहाँ पे जो है अमेरिका बिल्कुल था भी नहीं उस टाइम. अच्छा, सो ये मार्टिन लूथर जो था ये एक जर्मनी का बंदा था. फिर तो इसने क्या किया कि इसने जो है वो चर्च में दाखिला किया कि मैंने चर्च की तालीमात को पढ़नी है. जब इन्होंने चर्च को ज्वाइन किया तो इनको ये लगा कि चर्च में तो बहुत सारी खराबियां हैं. खराबियां जो हैं आप कहाँ पे देखोगे, आप चौसर के कैंटरबरी टेल की एग्जांपल्स अगर आप लाओ कि प्रोयरस का करेक्टर, पार्टनर का करेक्टर, डिफरेंट फ्रायर का करेक्टर, जो चर्च की मेन मेन बॉडीज थी, उन सब के करेक्टर तकरीबन जो है वो ख़राब थे. तो मार्टिन लूथर जो है वो एक जब जाता है उसमें चर्च में तो उसको खराबियां दिखती हैं कि कैसे जो है आप पैसे लेके लोगों के गुनाह माफ़ कर रहे हो, या कैसे जो है आप लोग इतनी अयाशियां कर रहे हो. सो इन चीज़ों के खिलाफ जो है उसको थोड़ा सा बुरा लगा. सो ही रोड टू द पोप. सही है, वो जो है एक खत लिखता है पोप को. पोप जो है वो हेड होता है चर्च का. सही है, तो उसको खत लिखता है कि ये खराबियां हैं आपके उसमें चर्च में, तो इसका कोई इलाज है या इसकी कोई जस्टिफिकेशन या कोई आर्ग्यूमेंट से आप अगर मुझे समझा दें. तो वो पोप जो है इसको इग्नोर कर देता है, मतलब इसको जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं देता. सो ये क्या करता है कि ये बहुत सारी रीडिंग करने के बाद जो है ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जो चर्च के आजकल की जो चीज़ें हैं दैट इज़ रॉन्ग. सो ये क्या कर देता है कि चर्च के उस पे लिख देता है, चर्च की गेट पे लिख देता है कि आई प्रोटेस्ट. मींस मुझे इस कैथोलिक चर्च से जो है, मतलब कैथोलिक जो कर रहे हैं, कैथोलिक फॉलोअर्स जो कर रहे हैं या कैथोलिक चर्च जो कह रहा है, उससे मुझे जो है वो प्रोटेस्ट है. आई प्रोटेस्ट वो लिख देता है. सो आई प्रोटेस्ट से जो है प्रोटेस्टेंटिज्म की या प्रोटेस्टेंट की जो है वो हिस्ट्री हमारे पास स्टार्ट हो जाती है. 1517 में ये करता है. इसके बाद जो है there were different people, for example we have discussed the writer or the professor of 14th century जिसका नाम जो है वो विक्लिफ है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है. अभी अगर उस पे हम आए तो वो भी तो चर्च के काफ़ी खिलाफ था ना. लेकिन ये चीज़ क्या हो गई कि जब मार्टिन लूथर किंग जो है उसने ये चीज़ की, इस टाइम पे भी लोग जो है वो चर्च के खिलाफ थे लेकिन वो कुछ कह कर नहीं पा रहे थे. लेकिन मार्टिन लूथर किंग ने जब ये चीज़ की तो उसके बाद लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया. और जब इसको फॉलो करना स्टार्ट किया तो नाउ वी हैव अनदर सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी विच इज़ प्रोटेस्टेंट. तो जो है ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिक चर्च में जो है वो बढ़ गई. कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करने लगे और कुछ लोग जो है वो चर्च को फॉलो करने लगे. तो इस तरह का एक सिस्टम जो है वो इंग्लैंड में भी चालू हुआ. तो इसके बाद जो है some kings of England were Catholic and some of them were Protestant. तो अभी हम now we will discuss it and we will compare it with the time of John Donne. So when Donne was born, he was under Queen Elizabeth, who was Protestant. और जब जॉन डन जो अपना था उसकी जो अपनी फैमिली थी, एज आई हैव मेंशन्ड दैट डिफरेंट फैमिलीज वर डिवाइडेड इनटू इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. सो जॉन डन की जो फैमिली थी वो क्या थी, वो कैथोलिक थी. तो जॉन डन हैड फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ टाइम, और वो जो है किसकी वजह से उसने फेस किए कि वो जो है कैथोलिक था और तब जो ही बादशाह जो है वो प्रोटेस्टेंट की थी. और नाउ हियर आई विल मेंशन दैट के जो किंग या क्वीन बनती थी एलिजाबेथ, तो फिर भी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी थी. इनसे पहले जो इनकी बहन क्वीन थी मैरी, तो मैरी जो है उन्होंने बहुत सारे, वो जो है खुद कैथलिक थी, तो मैरी ने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो कत्ल कर दिया था, मार दिया था, जला दिया था, उनके घरों को जला दिया था. आयरलैंड में जो है बहुत सारे दंगे कर दिए थे. तो इस तरह जो है वो चर्च के नाम पे जो है कत्लेआम जो है वो स्टार्ट हुआ था इन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो है.
तो अगर क्वीन एलिजाबेथ बहुत ही अच्छी थी और वो लोगों को मार नहीं रही थी, या अगर मार भी रही थी तो किसी को मतलब पता नहीं चल रहा था, या मैरी की तरह जो है मैसेकर वो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो कैथोलिक लोगों को सफर करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ते थे। सो एट दैट वेरी टाइम, इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, सो हमें पता चल जाता है कि जॉन डन जो है वो कैसे जो है वो उसकी ग्रूमिंग या वो कैसे जो है वो बड़ा हुआ है। Now we will discuss this portion, that the age of Donne was an age of transition, standing midway between the age of Shakespeare. So Shakespeare was in also in 16th and 17th century, and Jacobean age. So Jacobean age जो है यहाँ तक सही है। तो ये शेक्सपियरियन एज है, और ये जो है मतलब इसकी पैदाइश और इसकी डेथ, तो ये शेक्सपियर के एज में भी आ जाता है और जेकोबियन एज के बीच में भी आ जाता है, सही है। एज ऑफ डन वुड इफेक्टिवली एंड सब्सटेंशियली कवर द फर्स्ट 30 ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। मींस डन की जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में या पोइट्री में, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो जो है पहले ही 30 31 सालों के, जो 17th सेंचुरी 31 30 साल है, उनमें जो है इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है, सही है। दिस एज स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द एज ऑफ शेक्सपियर एंड द एज ऑफ मिल्टन। और ये एज जो है शेक्सपियर के एज मींस एलिजाबेथन एज, और एज ऑफ मिल्टन जो कि 17th सेंचुरी का बिल्कुल एंड था, उसके बीच में जो है ये बीच का एज जो है हमारे पास कंसिडर किया जाता है, जिसमें जॉन डन जो है वो जिंदा थे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। Now, as I have already mentioned that John Donne's poetry was divided into two bits. First was secular poetry, and after that the divine poetry. So first of all, do not confuse it कि उसने जो है वो पहले secular poet सारी मुकम्मल की, उसके बाद वो divine poetry में आया, या वो divine poetry सारी मुकम्मल करके secular में आया। ये जो है इन्होंने mix करके जो है वो हम कह सकते हैं कि लिखी है। So first of all, you have to understand the term secular। इसे जो है वो मतलब कैसे हम जो है वो समझेंगे। सो टू अंडरस्टैंड द टर्म सेक्युलर यू हैव टू डिफाइन इट इन अ वे दैट सेक्युलरिज्म जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है देयर इज नो कनेक्शन। जब आप कह देते हो कि एक स्टेट जो है वो सेक्युलर है, मींस एक कंट्री सेक्युलर है, सो उनके का एजेंडा जो होता है वो क्या होता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। मींस आप एक चीज से जो है अगर रिलीजन को निकाल देते हो तो वो चीज जो है आपकी सेक्युलर हो जाएगी। अगर हम पाकिस्तान पे फोकस करें या उसकी एग्जांपल दे, तो पाकिस्तान जो है एक सेक्युलर स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो ये सेक्युलर स्टेट नहीं है, क्योंकि इसके लॉ में हर चीज में जो है वो रिलीजन जो है वो मतलब मौजूद है। तो सेक्युलर पोइट्री वो पोइट्री जिसमें रिलीजन का कोई मद्दा नहीं है, और ये विदाउट रिलीजन मतलब रिलीजन का कोई भी जो है इसमें असर या इसमें जो है वो जिक्र जो है वो रिलीजन का नहीं है। इसी तरह जॉन डन की जो है वो डिवाइन पोइट्री है। अभी डिवाइन जो है दैट इज रिलेटेड टू गॉड। सो हियर जॉन डन हैज चेंज हिज फोकस फ्रॉम सेक्युलर पोइट्री, द पोइट्री ऑफ लव, टू डिवाइन पोइट्री दैट इज अबाउट गॉड। मतलब डिफरेंट जो है वो बाइबल के चैप्टर्स या इनके बारे में जो है डिवाइन पोइट्री जॉन डन ने लिखी है। So after that we will divide the different genres in which he has written। मतलब अगर हम जो है वो बात करें तो इनकी जॉनरा तो पोइट्री है, लेकिन पोइट्री में भी डिफरेंट इसमें जो है इन्होंने राइटिंग की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो है 55 सोनेट्स एंड सॉन्ग्स जो है वो लिखे हैं। सॉन्ग जो है वो अगर हम जो है नॉर्मल अल्फाज में बयान करें तो सॉन्ग जो है एक छोटा पीस होता है राइटिंग का, पोइट्री का, जिसमें इंतहाई इमोशनल और रिदमिक टच जो है वो होता है। मतलब राइम, रिदम और इमोशनल टच जो है इनमें ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत कूट कूट के भरी होती हैं, और ये एक स्मॉल फॉर्म ऑफ पोइट्री है, सही है। इसके बाद अगर हम सोनेट को देखें तो सोनेट जो है वो आप लोगों को पता है कि उसमें 14 लाइंस होते हैं, पहले 8 और फिर 6। तो इस तरह जो है जिस तरह हमने एक क्लास ली थी उसमें हमने सोनेट को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। उसके बाद है एलिजीज। एलिजीज आर रिटन जब किसी की डेथ होती है उस पे जो है वो लिखे जाते हैं। तो इन्होंने 20 एलिजीज जो है अपनी लाइफ टाइम में लिखी हैं। सो नाउ यू हैव टू फोकस दैट सेक्युलर पोइट्री सॉन्ग्स एंड सोनेट का कोई डिवाइन से गॉड से ताल्लुक नहीं है, तो ये सेक्युलर पोइट्री हो गई। एलिजीज का गॉड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गई, सेक्युलर पोइट्री हो गई। नाउ वी हैव सिटायर। सिटायर जो है वो एक सोसाइटी पे या लोगों पे किया जाता है, तो इसके साथ भी हमारा जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है कि ये मतलब गॉड के साथ कोई भी ताल्लुक
किसका नहीं है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव वर्स लेटर। सो जिस तरह लिखा हुआ है इस वर्स लेटर को हमने उसी तरह ही इंटरप्रेट करना है। लेटर जो होता है, आप किसी को मैसेज देना चाहते हो तो आप जो है लेटर लिखते हो। वर्स मीन इन अ फॉर्म ऑफ वर्स। सो ये राइटिंग जो थी ये पोइट्री के फॉर्म में लेटर्स के उसमें होती थी, सही है। एपिथेलेमियम्स जो है वो मैरिज पोएम्स को कहते हैं कि मैरिज के बारे में जो है वो पोम्स जो होती हैं या राइटिंग्स जो होती है, पोइट्री जो होती है उसको कहते हैं। इन्होंने ये 3 लिखी है। और एनिवर्सरी जो है वो हम किसे कहते हैं कि एक साल में जो है फॉर एग्जांपल आज के दिन कोई काम होता है या कोई मर जाता है या कोई जिंदा हो जाता है तो हम जो है अक्सर जो है इसको मरने पे या कोई काम जो है हम स्टार्ट आज कर लेते हैं तो इसके एक साल बाद जो है हम उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो इन्होंने 2 एनिवर्सरीज लिखी हैं। वो किसके लिए लिखी है? डेथ ऑफ एलिजाबेथ ड्रोरी। नाउ we have discussed in our previous slides that Elizabeth Queen, so she is not the queen, ये जो है कोई और एलिजाबेथ है, सही है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। Death of Elizabeth Drury, the 14-year-old daughter of his patron Sir Robert Drury। पैटर्न जो है वो मैंने पहले समझा चुका हूँ कि पैटर्न जो है आपको पैसों पे या आपको जो है वो कोई बंदा जो है वो पकड़ लेता है कि आप पोइट्री करें, मैं आपको जो हूँ सपोर्ट करूंगा, तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो जॉन डन को जो पैसे देता था, जिसको सपोर्ट करता था, वो सर रॉबर्ट ड्रोरी थे। वो सपोर्ट करते थे। उनकी जब बेटी के का इंतकाल हो गया तो जॉन डन ने जो है उनकी याद में या उनके लिए जो है वो डिफरेंट पोइट्री जो है वो लिखी है। सो फॉर इस क्लास के लिए जो है इतना काफ़ी है। वी विल डिस्कस different thing in upcoming classes. Thank you so much.